A very good morning to all of you. Myself, Professor Yasir Beg from Sagar Institute of Science and Technology, SysTech Bhopal, and I am an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering. As you know that we are undergoing a subject that is known as engineering thermodynamics, and we have already covered some of the lectures before this, and this is our fifth lecture of unit 3, which is the gas cycles. And today's topic will be what? Today's topic will be dual cycle and Breton cycle. Okay, so we have already seen some things, and that I will discuss right now with you, and then we will be starting up with today's topic of dual cycle and Breton cycle. So let's move on. Up till now, what we have seen previously is we have already seen that what is a power cycle, and we have described that power cycle are those cycles which will take heat as an input source, and those cycles that they undergo through some processes, some chains of processes, and it works in a closed loop, and after the completion of one loop they are able to produce some net amount of work which we utilize in running of an automobile engine, right? So these are the basic definitions of a power cycle, and after the description of power cycle we have described that power cycle can be of many types, and there are two main famous types of power cycle. One is gas cycle and another is vapor cycle, and we have seen we have said that we are only going to discuss gas cycles in this unit, and gas cycles are those cycles in which what happens, the working medium, the fluid, the what do we call, the fuel always stays in the form of gas. Okay, we are not going to see any change of phase of the working medium. And the first cycle that we have seen in this domain is the Carnot cycle. Carnot cycle is assumed to be the most perfect cycle ever possible. The Carnot cycle has 100% efficiency, and the Carnot cycle has the maximum efficiency, not 100% efficiency. Carnot cycle has the maximum efficiency among all the cycles that can run in a closed loop and produce a net work after undergoing the complete cyclic process. We have done some assumptions in order to make the Carnot cycle, and the assumptions were such that we have said that the compression and expansion will be adiabatic, and the heat addition and heat rejection will be isothermal. These were the four processes involved, and we said that the piston cannot move at varying speed. That is, for adiabatic process to be compressed during compression and expansion, the piston speed has to be very fast, and during constant temperature heat addition and constant temperature heat rejection, the what do we call this thing? The speed of the piston has to be very low, very slow. So that is why this varying speed of the piston cannot be maintained, and the rest of the assumptions were that air standard cycle that we have taken is that the air is considered to be the working fluid, then there is not going to be any friction, and next was that this thing that the specific heat of air is not going to be varying with change in temperature. Okay, so these were all the assumptions that we have made in order to study an air standard Carnot cycle, and we have seen that its efficiency was maximum, and that was equal to 1 minus what? Efficiency of Carnot cycle was equals to 1 minus low temperature divided by high temperature, right? This was the efficiency that we have already derived. Then we have seen Otto cycle. Otto cycle was the cycle that was developed by Nicholas Otto, and this was the first cycle which considered petrol or gasoline as the working fluid and working medium, but still we have assumed the air standard parameters and said that this is also going to run on air standard assumptions. And the efficiency of Otto cycle, we have derived the efficiency of Otto cycle. This was for Carnot cycle. The efficiency of Otto cycle came out to be what? The efficiency of Otto cycle was 1 minus 1 upon Rc to the power gamma minus 1, right? Rc or R to the power gamma minus 1, where what was R? R was nothing but
our compression ratio. Compression ratio was volume before compression divided by volume after compression. Okay, so this was our this thing efficiency of Otto cycle. Then there was efficiency of diesel cycle. We have also seen the diesel cycle. The difference between diesel cycle and Otto cycle was what? They both were having two processes. One was compression and expansion. The compression and expansion both were occurring with adiabatic as adiabatic in nature, but the heat addition in both the processes were different. The heat addition in Otto cycle was taking place at what? The heat addition in Otto cycle was taking place at constant volume, whereas the heat addition in diesel cycle was taking place at constant pressure. But heat rejection in both the cycles were taking place at constant volume only. Okay, so we have seen this also, and the efficiency of diesel cycle came out to be something like 1 minus 1 upon r to the power gamma minus 1 gamma minus 1, and then this multiplied by, I think, rc to the power gamma minus 1 divided by gamma minus 1, right? I think something like this. I don't remember actually. We'll see this thing. What was the efficiency of diesel cycle? Okay, so we have already derived this efficiency of diesel cycle as well, and then we have compared the two cycles. That one was taking place at when there was heat addition was due to the spark ignition. The combustion was taking place due to the spark ignition, and here in diesel cycle the combustion process was taking place due to what? Due to our compression process, right? So this was CI engines and this was SI engines. This is CI and this is SI, right? And then now we will be moving forward with our next cycle, that is dual cycle. What is dual called? Dual means that we are considering two cycles, the combination of two cycles. Okay, so let us see, and I will switch the language now. So dual cycle और limited pressure cycle. Dual cycle या limited pressure cycle जो है एक और thermodynamic cycle है जिसके अंदर हमने क्या करा है, that we have combined the Otto cycle and diesel cycle. तो Otto cycle और diesel cycle का इफेक्ट हमने कंबाइन करा हुआ है, और इन दोनों के इफेक्ट को कंबाइन कर हमने एक नई साइकिल जो है वो इन्वेंट करी है, और उस साइकिल का नाम डुअल साइकिल या फिर लिमिटेड प्रेशर साइकिल रखा है. ओके, एंड इन डुअल साइकिल व्हाट वाज हैपनिंग? डुअल साइकिल के अंदर क्या हो रहा है कि कंबशन जो है वो पार्टली होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एंड देन पार्टली होता है कांस्टेंट प्रेशर पे. जबकि आपको याद होगा कि जब ऑटो साइकिल थी तो पूरा का पूरा कंबशन वाज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड इन डीजल साइकिल में पूरा का पूरा कंबशन वाज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. बट यहाँ पे आधा कुछ हिस्सा कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन होता है, कुछ हिस्सा कांस्टेंट प्रेशर पे कंबशन होता है. दिस इज अ मोर रियलिस्टिक प्रोसेस. ये ज्यादा रियलिस्टिक प्रोसेस है. इस तरीके की प्रोसेस इंजन ज्यादा देखने को मिलता है कि कुछ हिस्से के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, कुछ हिस्से के अंदर कंबशन जब हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होने लगती है, राइट. एंड इट इज आल्सो एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल. ये भी एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड द प्रेशर वेरिएशन मोर क्लोजली इन द एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल. यस, इट इज दे आर सेइंग कि ये जो साइकिल है ये इस तरह की साइकिल है कि इसके जरिए से काफी हद तक इंजन की जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको स्टडी करा जा सकता है. यानी कि इंजन एक्चुअली ना तो कंप्लीटली कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड कराता है, ना कंप्लीटली कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड कराता है. इंजन जो है वो इन द मिक्सचर ऑफ दीज टू, कुछ हिस्से में कांस्टेंट वॉल्यूम रहती है, कुछ हिस्से में कांस्टेंट प्रेशर रहता है, और इन दोनों के मिले जुले इफेक्ट की वजह से इंजन का असली वर्किंग चल रही होती है. और इनका कहने का मतलब यह है कि डुअल साइकिल इन दोनों के इफेक्ट को कंसिडर करके चलेगा. ये यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इन डुअल साइकिल हीट इज एडेड पार्टली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्टली एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट. देयरफॉर द एडवांटेजेस is that more time is available for the fuel to completely combust. देखिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि एक इंस्टेंटेनियस हीट एडिशन होता है,
पिस्टन जब आकर एक जगह पे खड़ा हुआ है अपने टॉप डेड सेंटर पे उस टाइम पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है कि पिस्टन आकर रुकेगा एंड देन जो है पिस्टन नीचे मूव करना भी चालू कर देगा, उस टाइम पे हीट ऐड हो रही होगी। तो दिस इज गिविंग मोर टाइम इट इज गिविंग फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, है ना, ज्यादा समय मिल रहा है कंबशन को होने के लिए, तो दिस इज अ मच मोर रियलिस्टिक प्रोसेस। On the other hand, the dual cycle is slightly more complex. Obviously, because it is a combination of both the cycles, then it is slightly more complex than both of them. The thermal efficiency also lies between auto and diesel. तो इसकी जो efficiency है आप आगे वो भी देखेंगे कि ये auto cycle और diesel cycle के बीच में पड़ती है, कहीं इसकी efficiency जो है auto और diesel के बीच में कहीं आती है, right? डीजल से efficiency थोड़ी ज्यादा होती है और auto cycle से efficiency थोड़ी कम होती है. So next. प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डुअल साइकिल, हमने बताया प्रोसेसेस क्या है, इसके अंदर 4 की जगह 5 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड प्रोसेस भी जो है 5 रहेंगे। सबसे पहला रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन रहेगा, जो कि ज्यादातर हमने देखा है सारे प्रोसेसेस में, सारी साइकिल्स में यही रहा है। देन हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिएगा 2 हीट एडिशन प्रोसेस एक साथ हो रहा है, राइट। हमने यही अभी बताया था कि हीट एडिशन जो है वो आधा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा होगा और आधा जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा, सेम चीज इन्होंने बताई। देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन होता है जो कि एडियाबैटिक होता है, ये भी जो है हमने हर साइकिल में देखा है। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल, तीनों में हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है। ये तीनों साइकिल्स की सिमिलैरिटी है। तो ये इसके 5 प्रोसेसेस रहेंगे। डिफरेंस यही है कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस होते थे कंप्लीट साइकिल में, और इसके अंदर 5 प्रोसेसेस हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। नेक्स्ट, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसका पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम हमने बनाया हुआ है। दिस इज नथिंग बट आवर प्रेशर एंड वॉल्यूम साइकिल, दिस इज प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड हियर इट इज टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ओके, यही दोनों कर्व्स हमने ज्यादा पॉपुलरली सारी साइकिल के लिए देखे। तो आप जरा देखिएगा पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ये हमेशा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही रहा है एंड कंप्रेशन रहा है। हमने कहा कंप्रेशन प्रोसेस ऐसा होता है जिसके अंदर वॉल्यूम का रिडक्शन हो रहा होता है। तो देखिएगा ये वॉल्यूम जो है V1 पे कितनी ज्यादा है ना, एंड V2 पे आते आते तक वॉल्यूम कितनी कम हो गई है, राइट। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम कम हो रही है, जबकि प्रेशर जो है, प्रेशर आप देखेंगे तो पॉइंट 1 के ऊपर प्रेशर जो है वो काफी कम था, जबकि पॉइंट 2 पे जब आप आए हैं तो प्रेशर जो है काफी बढ़ चुका है। दिस इज अ क्लियरली कंप्रेशन प्रोसेस एंड दिस कंप्रेशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस आइसेंट्रोपिकली, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान, कंप्लीट प्रोसेस के दौरान आप कोई हीट ऐड ना कराएंगे, ना हीट को रिजेक्ट कराएंगे। हाँ, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कंप्रेशन प्रोसेस, जैसे ये कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली थोड़ी सी हीट ऐड कराई जाएगी एंड देन कुछ जब पिस्टन एक्सपैंड करना चालू कर देगा, पिस्टन वापस अपना टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ में जाना चालू कर देगा, तो थोड़े टाइम तक के लिए उसके अंदर और हीट हो रही हो, ऐड हो रही होगी, राइट। तो हीट एडिशन इज टेकिंग प्लेस इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज हियर एंड देन सेकंड इज हियर। ये 2 साइकिल, 2 प्रोसेस के अंदर आपकी हीट ऐड हो रही है। वन वाज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर इज कांस्टेंट प्रेशर, एंड देन आफ्टर दिस हीट एडेड द एक्सपेंशन प्रोसेस विल बी टेकिंग प्लेस हियर। This is the expansion process and the expansion is also being occurred at as an adiabatic process. तो अगर इसको मैं as an adiabatic process देख रहा हूँ तो एक चीज ध्यान देने वाली है। देखिएगा जो कंप्रेशन हुआ था वॉल्यूम 1 से लेकर के वॉल्यूम 2 तक, यानी कि कंप्रेशन इतनी वॉल्यूम में हुआ था, राइट। जबकि एक्सपेंशन जो हो रहा है, एक्सपेंशन इतनी वॉल्यूम में प्योर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि कुछ एक्सपेंशन जो है, कुछ एक्सपेंशन हीट एडिशन के दौरान में भी हो चुका है। ये जो है कुछ हीट एडिशन के दौरान इतना वॉल्यूम ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुकी है। ओके, एंड देन फाइनली हीट रिजेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 5 to 1। ये हमने हमेशा देखा है कि हीट रिजेक्शन यहाँ पे होती है QR। ओके, यस। देन सीइंग द TS डायग्राम ऑब्वियसली प्रोसेस 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एंट्रोपी आप देखिए कांस्टेंट दिख रही है आपको। देन यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है फर्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यह कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड अनदर इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये 2 प्रोसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और इन दोनों प्रोसेस के अंदर आपकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी एंड टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट, क्योंकि हीट ऐड कराई जा रही है।
और देन यहाँ आ जाए आप 0.4 से 0.5 तक, तो दिस वाज अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब है कि एंट्रोपी सेम रहेगी, बट क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है इसलिए जो है टेम्परेचर के अंदर ड्रॉप देखने को मिलेगा, पुराना टेम्परेचर ज्यादा था, नया टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है। So this was the drop in temperature, and finally, in order to complete the cycle, we have undergone this process. It is a constant volume. What? Constant volume heat rejection. यही हमारा हमेशा रहा है, constant volume पे heat reject कराई है हमने सारी ही cycles के लिए जो कि हमने अभी तक पढ़ी, right? तो ये cycle जो है इस तरह से 5 process के अंदर complete होती है आपकी। ये जो चार्ट है ये भी हमने अभी काफी सारी प्रोसेसेस के लिए देखा है, काफी सारी साइकिल्स के लिए देखा है, एंड आपको याद होगा कि बाकी सारी साइकिल्स के लिए भी हमने डेल्टा यू को हमेशा कैलकुलेट करा है। डेल्टा यू जो है मैंने आपको हमेशा बताया है कि इट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। और आप देखिए किसी भी प्रोसेस के लिए किसी भी तरह का प्रोसेस हो, इधर इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और एडियाबैटिक, आप चारों प्रोसेस के लिए अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है तो हमेशा mCv इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करके निकाल सकते हैं। इस चार्ट में और प्रीवियस चार्ट में वही डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 to 1, तो यानी एक प्रोसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा ये आपके चारों पांचों जो प्रोसेस हैं, इन पांचों प्रोसेस के लिए जो मैंने हीट ट्रांसफर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कैलकुलेट करा है वो कैलकुलेट करा है कि mCv इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बाकी के अपने दो कॉलम्स के अंदर तो ऑब्वियसली डेल्टा क्यू जो है वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, तो ये दो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस थी, प्रोसेस 1 से 2 एंड 4 से 5, दिस वाज एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड दिस वाज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर रेट 0 रहा है। एंड प्रोसेस 2 से 3 एंड प्रोसेस 5 से 1, ये जो दोनों प्रोसेस रही हैं, इन दोनों प्रोसेस के अंदर आपका वर्क डन जो है वो 0 रहा है, राइट। क्योंकि ये दोनों प्रोसेस कैसी रही, ये दोनों प्रोसेस आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रही। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमें ध्यान होगा कि क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो पी डी भी 0 हो जाता है और डी भी 0 हो जाता है, इसलिए जो है आपका वर्क डन 0 हो जाता है, राइट। एंड हमने यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके, जैसे कि हमने प्रीवियसली चार्ट्स के लिए लगाया था, mCp डेल्टा टी इज, ये आपने डेल क्यू की वैल्यू 0 रख देनी है, डेल क्यू की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, राइट। तो ये डेल्टा यू जो है वो माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू हो जाएगा, या डेल यू डब्ल्यू जो है माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा, और आपकी ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यही करा है कि डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल्टा यू। सिमिलरली यहाँ पर भी यही हुआ है, डेल डब्ल्यू इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल्टा यू। प्रोसेस 4 to 5 में भी वर्क डन इसी तरीके से निकाला है। देन प्रोसेस 3 से 4, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर था तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपका होता है P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वर्क डन इस तरह से निकाला गया। रिमेनिंग प्रोसेस के अंदर आप देख लें कि जो हमने निकाला है उसका तरीका यही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके कि डेल क्यू इज नथिंग बट डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और सिंस डेल डब्ल्यू इज 0, तो सिंस डेल डब्ल्यू इज 0 तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, तो चेंज इन हीट जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है। इसीलिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि डेल्टा यू की वैल्यू है वही एग्जैक्टली सेम आपके डेल क्यू की भी वैल्यू आपको नजर आ रही है, राइट। एंड फाइनली यहाँ पर भी ऐसा ही है, और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर था, इसलिए हीट ट्रांसफर mCp इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, राइट। So this is the complete chart. Again I am telling and emphasizing, अगर आप ये चार्ट बना लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि एक ये जो प्रोसेस रहा था इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन की वैल्यू क्या थी। आपके पास चार्ट बना हुआ है, आप चार्ट के जरिए फौरन बता सकते हैं कि वर्क डन की वैल्यू क्या रही होगी, राइट। कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। देन efficiency of dual cycle, तो efficiency of dual cycle lies between the efficiency of Otto cycle and diesel cycle, हमने ये बात करी है। एंड इसकी efficiency वही आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, यानी कि वर्क नेट वर्क डन अपॉन
टोटल हीट सप्लाइड नेट वर्क डन ये है इसका इतना, इसने टोटल वर्क डन दिया है, और जो हीट सप्लाइड रही थी वो आपकी यहाँ रही थी। तो इसको जो हमने एलसीएम ब्रेक करा है, एलसीएम ब्रेक करने के बाद इस तरह से ये आपको एक इक्वेशन मिली है, और इसी तरीके से हमने हर बार शुरू करा है डेरिवेशन, राइट। एंड इसके अंदर मैं आपको डेरिवेशन पूरा नहीं बता रहा हूँ, बस हमें याद करना है कि ये जो टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेचर्स को वॉल्यूम्स और प्रेशर्स के टर्म में चेंज करना होता है हमें, और टेम्परेचर को वॉल्यूम एंड प्रेशर के टर्म्स में जब चेंज करते हैं तो फाइनली एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है। तो ये मेरा एफिशिएंसी का फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा, राइट, जो कि डिपेंड कर रही होगी किस पे, अगेन आर दैट इज कंप्रेशन रेशियो, देन आरपी प्रेशर रेशियो, एंड देन आरसी इज द कंप्रेशन, आरसी इज द दैट थिंग कट ऑफ रेशियो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको आर, आरपी, आरसी इन तीनों की बात बताऊं तो आर जो है आपका कंप्रेशन रेशियो है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, राइट। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। एंड अगर आपका आरसी की बात करें कट ऑफ रेशियो, तो आरसी क्या होता है? आरसी इज नथिंग बट वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन, वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन divided by volume before heat addition, okay, before heat addition, okay. And finally rp is nothing but the pressure ratio, and pressure ratio की वैल्यू क्या आएगी आपकी? pressure ratio की जो वैल्यू होती है या जो डेफिनेशन है वो है कि pressure after pressure after compression, this is after compression divided by pressure before compression, okay, pressure after compression and divided by pressure before compression, so this is the pressure ratio. अब ये जो तीनों चीजें हैं आपकी, ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म्स में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, एंड आपसे जो है इनका सिग्निफिकेंस भी पूछा जा सकता है कि अगर एफिशिएंसी में चेंज लाना है तो कंप्रेशन रेशियो के साथ क्या करा जाए, तो एक्सपेंशन रेशियो के साथ क्या करा जाए, तो आपका प्रेशर रेशियो के साथ क्या करा जाए, इस तरह का आपकी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेटन साइकिल. Brayton cycle is mostly used in aircraft engines. ये जो है ये ओपन साइकिल भी होती है, जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल हो, ओपन ब्रेटन साइकिल भी हो सकती है, यानी कि एटमॉस्फेयर से एयर ले रहे होते हैं एंड एटमॉस्फेयर में एयर को रिलीज कर रहे होते हैं. इट इज मोस्टली अ थ्योरेटिकल साइकिल फॉर सिंपल गैस टर्बाइंस. और गैस टर्बाइंस जैसा कि आपको मालूम है एरोप्लेन्स के अंदर गैस टर्बाइंस यूज होती हैं, तो एरोप्लेन्स के अंदर ये साइकिल यूज होती है. It consists of two isentropic process, again isentropic compression and isentropic expansion, जो कि हम हर बार पढ़ते हुए हैं, and two constant pressure processes. तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, जो heat addition and heat rejection है, they both will be taking place at constant pressure. चार processes से ये साइकिल मिलकर के बनी होती है. तो साइकिल is similar to डीजल साइकिल. क्योंकि डीजल साइकिल से क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन आपका एडियाबैटिक हो रहा है, उसमें भी एडियाबैटिक था. फिर हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, उसमें भी हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था. ठीक है. फिर एक्सपेंशन जो है वो भी एडियाबैटिक होता है, उसमें भी एक्सपेंशन एडियाबैटिक हो रहा होता था. बट उसमें जो है एक्सपेंशन होने के बाद हीट रिजेक्शन जो है वो उसमें कांस्टेंट आपका वॉल्यूम पे होता था, जबकि यहाँ पे हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा. इसीलिए इसको मोर और लेस डीजल साइकिल के बराबर माना जाता है. ओके. So the Brayton cycle, this is not dual cycle, this is Brayton cycle. So the Brayton cycle is 1, 2, 3, 4 consists of the following 4 processes. कौन से अभी आपने बताया मुझे? Reversible adiabatic compression, heat addition at constant pressure, reversible adiabatic expansion process and heat rejection at constant pressure. ये 4 प्रोसेसेस अभी आपने मुझे बताया. ये चारों प्रोसेसेस इसके significant processes रहेंगे, and this is going to form a complete cycle. Next, इनका TS and PV diagram again, तो आप देखिएगा ये PV diagram आपको clearly दिखाई दे रहा है. Process 1 से 2 here. Process 1 से 2 is adiabatic compression. Adiabatic, that is why S is constant, यानी कि entropy is constant.
then constant pressure heat addition, that is why pressure is constant here, then adiabatic expansion here, and finally this is constant pressure heat rejection, right? इस प्रोसेस में आपने यहाँ पे हीट ऐड कराई होगी, Q ऐड, ये, और यहाँ पे आपने Q रिजेक्ट कराई होगी, Q R. Okay, so this is the complete process. Next is the TS diagram. TS diagram के अंदर भी again आप देख सकते हैं, this is the isentropic process, that is why entropy is constant, then a constant pressure process, that is why this temperature is increasing as well as entropy is increasing, then again adiabatic, what do we call, expansion, that is why temperature is reducing, and finally constant pressure heat rejection to complete its cycle, and that is why it is reaching at its initial position, point 1. Okay, so this is the PV diagram and TS diagram of this cycle. I am not going to discuss its table. You can make the table as we have made for the previous cycles. जिस तरह हमने previous cycles के लिए tables बनाए हैं, आप इस cycle के लिए भी table बना सकते हैं, और उस table के अंदर आप चारों processes लिख सकते हैं, process 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड 4, 1, और चारों प्रोसेसेस के लिए आप ये तीनों क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा यू, डेल डब्ल्यू एंड डेल क्यू, ये तीनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद आप जो है इस तरह का एक टेबल बना करके रख सकते हैं, जिस टेबल की मदद से आप किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म कर पाएंगे. ओके, next, the efficiency of Brayton cycle will be what? The efficiency again, if you will see here, so the efficiency is every time, the efficiency is heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied, heat supplied minus heat rejected divided by heat supplied. Every time this is going to be your efficiency. That means that every time efficiency is going to be 1 minus heat rejected by heat supplied, right? Heat rejected by heat supplied. तो heat rejected by heat supplied again आप रखेंगे कहाँ से? उस टेबल में से ला करके जो टेबल आपको बनाना है, एंड अगेन टेम्परेचर्स के फॉर्म में आएगी ये, तो इसको टेम्परेचर के फॉर्म में से हटा करके आपको प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में लेकर आना होगा, एंड जब आप प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में लेकर आ जाएंगे तो आपको जिस तरह से हमें एक ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मिली थी, उसी तरीके से इसकी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी मिलेगी. इट इज 1 माइनस 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, जहाँ पे गामा जो है एयर इंडेक्स है, इट्स वैल्यू इज 1.4, एंड आरपी इज नथिंग विद द प्रेशर रेशियो. प्रेशर रेशियो यानी कि प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय प्रेशर बिफोर कंप्रेशन, दिस इज आरपी. Okay, and again here also it is very clear that as soon as you are going to increase the pressure ratio, जैसे जैसे आप pressure ratio बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि efficiency भी इसकी improve होती जा रही है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि compression करने से पहले जो pressure था and compression करने के बाद जो pressure है, यहाँ आप जितना ज्यादा compress करेंगे उतनी better efficiency आपको मिलेगी. Okay, सो सिंपल वर्ड्स में प्रेशर रेशियो अगर आप बढ़ा देंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. सो दिस इज द मेन क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस ब्रेटन साइकिल. ओके, सो ब्रेटन साइकिल और इस साइकिल डुअल साइकिल के बारे में हमने उतना डीपली नहीं देखा है, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट, दिस लेक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आवर प्रीवियस लेक्चर्स. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था ऑटो साइकिल किस तरह से परफॉर्म कर रही थी, डीजल साइकिल कैसे परफॉर्म कर रही थी, और उसी के एनालॉगसली इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा है कि ऑटो डुअल साइकिल एंड ब्रेटन साइकिल किस तरह से परफॉर्म करेंगे. एग्जैक्टली वही का वही एनालॉगसली हमने देखा है, उसी की एनालॉजी के अंदर आज का पूरा लेक्चर रहा है हमारा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कुछ और जो साइकिल्स के नाम थे उनके प्रोसेसेस बताऊंगा, एंड हम जो है अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. Not these cycles are completed. I am going to discuss couple of numericals with you. I think maybe in a video lecture or in our discussion class we will discuss these numerical questions that already occurred in our previous semester examinations, and then we will move on to our ideal gas equations. Okay, so we will see how the mixture of gases will behave, right? when जब हम
गैसेस को मिक्सचर बना देते हैं, आइडियल गैसेस के दो गैसेस का मिक्सचर बनाते हैं, तो वो मिक्सचर बनने के बाद जो नई गैस आती है वो किस तरह से बिहेव करती है उसकी स्टडी करेंगे, और देन जो है इस यूनिट को नमस्ते करेंगे, राइट? So I think that is it for today, and I hope you guys liked this video. Thank you for watching.